survivor now joining us on the broadcast. I want to thank you for speaking to India today. I understand it may have been extremely shocking for you for when this happened. But if you could talk about it in detail, because it's important to put out your story, it's important that all women talk about how this is happening. Okay, so the incident happened on 2nd of June around 10:50 a.m. Like in the morning, and I was coming from the Jaipur to Gurugram from my shoot from the Gold Line bus, and the bus dropped me at the Rajiv Chowk near the underpass, and I booked a cab from there, and I called the driver so many times. He took my booking, but I'm sorry, I'm getting so much calls. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Please go on. Hello. Okay. So I canceled that booking because so the man came. Initially, he was staring me from a distance. Then he tried to come closer and closer, and he just came in front of me and kept staring at me. Then I realized that his pants zip was unzipped, and he took his penis outside and started masturbating in front of me. So I was completely froze. I didn't know how to. I'm so sorry. I'm getting so much calls from these news channels. I'm so sorry. Please go on. Okay. Please go on. So yeah. So I initially froze. I didn't record. I didn't react it because I was scared. So I canceled the ride and I booked another ride. The another ride also took nearly 10 to 15 minutes to arrive because the traffic was really intense and crazy. And I noticed the man was masturbating. So I thought to record the video for the proof, just in case something happens, or maybe if I would have slapped him, because all people always come to take the videos to put this on social media. They really don't help people. So I recorded video for the evidence. I came back to my place. I tweeted everything on Twitter, and I also tagged the Gurugram police and the local authorities, but there was no automated message, no response. So the other day, I recorded the whole incident and the video and the picture and put it on the social media. And not the exact same day, but the other day, uh, I got a call, like a message from the police station, and then they called me yesterday to file the complaint. And I went there. They asked me to come to the Rajiv Chowk. So I went there, and today they asked me to come to the court with the proof in pen drive. So yeah, I'm ready to cooperate with them because really want to take some really real action on this. पर अब मुझे एक बात बताइए, जब ये हुआ था काफी लोग थे आसपास. आई मीन इट इज एन ओपन रोड, देयर आर सो मेनी कार्स दैट आर अप्लाइंग ऑन दैट रोड. किसी ने कुछ नहीं किया? एक्चुअली वो आदमी ना, वो ही वॉज ऑलरेडी वेरी प्रिपेयर्ड. अगर आप वीडियो में भी देख रहे होगे ना, उसने मास्क लगा रखा था, उसने बैग आगे टांग रखा था, और उसको यही करना ही था क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर था. उसको लगा था नीचे से कुछ दिखने नहीं वाला. एंड ही वॉज वेरी श्योर कि वो जिसके सामने कर रहा है बस उससे ही दिखे, तो वो बस मुझे ही दिख रहा था. हाँ, देयर वाज सो मेनी कार्स, कोई रुक नहीं रहा था. लोग भी थे, थोड़े दूर में थे, आसपास एकदम नहीं थे. एक दो क्रॉस भी हो रहे थे, बट कोई नोटिस नहीं किया. तो मैं बस वेट कर रही थी कि मेरा कैब आया और मैं वहां से चली जाऊं कैसे भी करके. देन माई कैब अराइव्ड. आई वेंट टू द ड्राइवर. वो थोड़ा मेरे को कुछ 100-200 मीटर पीछे बुलाया. मैंने सोचा मैं जाके उसे बताऊंगी इसके बारे में. तो जैसे ही मैं अपने कैब के पास गई ना, ही क्रॉस द रोड एंड रन आउट. क्या इस आदमी को पता था कि आप उसका वीडियो बना रही हैं? मुझे नहीं लग रहा उसे पता होगा क्योंकि मैं एग्जैक्ट वीडियो नहीं बना रही थी. मैं आई वाज प्रिटेंडिंग दैट आई एम ऑन अ कॉल एंड आई पुट दिस माय फोन लाइक दिस. आई रिकॉर्ड ऑन द वीडियो, एंड फिर जितना भी कैप्चर हो पाया फिर आई कैप्चर्ड दैट. आपने पुलिस अगर मैं को फोन सामने से किया था? बनाती तो शायद तुरंत भाग जाता. अच्छा, आपने पुलिस को फोन किया था, आपने विमेंस हेल्पलाइन पे फोन किया था, क्या हुआ था फिर? मैंने एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नहीं किया था. मैं घर आके कुछ जैसे ही घर आई होंगी, मैं तुरंत 15-20 मिनट बाद ही मैंने कंप्लेन करने के लिए कॉल किया. मैंने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया, तो उसने मेरे को बोला. तो मैंने 1090 पे किया, 1091 पे किया, 1096 पे किया, कोई कॉल ही नहीं लगी, सब डिस्कनेक्ट हो गई. देन आई गॉट अ नंबर
वो कुछ दिल्ली वुमेन हेल्पलाइन का था, तो उन्होंने मुझे बोला कि तो दिल्ली ये गुड़गाँव का इंसिडेंट है, हम नहीं इसे ले सकते, तो उन्होंने मुझे गुड़गाँव वाले का नंबर दिया। फिर मैंने उधर कॉल किया, तो मैंने कहा मुझे एफआईआर लॉन्च करानी है, उन्होंने कहा आपको थाने आना पड़ेगा, हम ऑनलाइन नहीं ले सकते, आपको तभी करना चाहिए था। तो मतलब उसको बस 1 घंटा ही हुआ था बारली एंड फिर मैं थाने जा नहीं पाई, तो फिर इसीलिए मुझे इंस्टाग्राम पे डालना पड़ा। जब गुरुग्राम पुलिस ने आपको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आप सभी प्रूफ के साथ आइए। आई एम श्योर वहाँ सीसीटीवी कैमरास भी होंगे। अ, कुछ व्यू आया होगा इस आदमी का, इसे मास्क पहना हुआ है। बट क्या वो अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं? कुछ फास्ट एक्शन हुआ है क्या इस पर? दे आर डूइंग देयर बेस्ट, बट अभी मुझे कोई अपडेट नहीं आया है कि उन्हें कोई सीसीटीवी फुटेज मिला है कि नहीं। इनफैक्ट मैं वहाँ पे उनके साथ गई भी थी, एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया मैंने, उन्हें टाइमिंग भी बताई। होपफुली उन्हें मिल गया वो सीसीटीवी फुटेज। आपने क्या फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर दी है? हाँ, मैंने स्टेटमेंट दे दिया मैंने, और एफआईआर मतलब जो भी लिखते हैं प्रोसीजर्स वो भी कर दिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ दे दिया है अपनी तरफ से। कितनी देर तक आप वहाँ खड़ी थी? ये आदमी कब से वहाँ खड़ा था? किस तरह का बॉडी लैंग्वेज था? क्योंकि आई एम श्योर अगर इसने आपके साथ किया है, ही मे बी अ रिपीट ऑफेंडर, ही मे हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल विद अदर वुमेन। हाँ, ये हो सकता है। आई वाज़ नियरली देयर फॉर 20 मिनट्स आई गेस। आई एम सॉरी, आई वाज़ देयर फॉर 20 मिनट्स आई गेस। और ये उससे पहले वहाँ खड़ा था। नहीं, ये मेरे आने के बाद आया। मैं सिर्फ़ दूर से देखी थी कि कोई आदमी उधर से आया, और फिर जब वो देखा मैं वहाँ अकेले खड़ी हूँ, तो वो धीरे-धीरे पास आने लगा, फिर मेरे सामने खड़ा हो गया, फिर मेरे आगे-पीछे घूमने लगा और वही सेम हरकत करने लगा। क्या आपको डर था कि दिस कुड हैव टर्न्ड इनटू समथिंग वर्स? एज अगर मच एज देयर वर शायद अ लॉट रात ऑफ रहती पीपल है, देयर। लोग नहीं रहते, तो पॉसिबली येस। आपने किसी वहां पर किसी को बताने की कोशिश की? वहां और लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, कोई पुलिस, नहीं, कोई नहीं था। कोई ट्रैफिक एक्चुअली पुलिस? थे, बट सब एट अ डिस्टेंस थे, कुछ 100-200 मीटर की, और मुझे पता भी नहीं था वहाँ पास में पुलिस बूथ है, वरना मैं शायद तुरंत वहीं जाके करती, तो मुझे आइडिया नहीं। सिंस आई एम नॉट फ्रॉम गुड़गाँव, आई एम लिविंग हियर फ्रॉम पास्ट 8 मंथ, बट मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था। All right, I want to thank you for being brave, speaking to India Today, lodging a formal complaint. But fact is that there need to be, there needs to be a serious solution, and those who are accountable for helping out women in such situations. The helpline number for women that has been created for a purpose, but it is really unfortunate that nobody responded to you timely, and will wait and watch now to the action that is taken by the Gurugram police in this matter, and hoping this man is nabbed at the earliest.